So we are going to start today with crystal field theory, the explanation given by physics scientists to explain what are coordination compounds. So this was an attempt made by physicists and looking at the crystalline structure of the complexes, they proposed this theory. That's why the name crystal field theory. The theory has its own limitations. Historically, the theory was given after Werner's theory, but before hybridization theory. Although we are studying it after hybridization, but the theory historically was given earlier to even valence bond theory. This theory has some good points about it. That's why the theory, although has limitations, is studied even till today. Certain aspects of complexes can rather only explained by valence bond crystal field theory. That's why this theory has still its importance and place in chemistry. Let us understand what are the basic postulates of the theory. Usually, basic postulates are not asked in exams. They are to understand the next part of the answers. Point number one, understand it very well so that you understand the main answers of the theory. This theory, first of all, very first point, it says that metal and ligands, whatever bonds are present, they are only going to be electrostatic bond, ionic bond. Actually speaking, यहीं पे थियरी का सबसे पहला ड्रॉबैक है that crystal field theory does not approve any covalent bonding at all. It considers metal ligand bonds to be only ionic in nature. This is the first basic point which we know today because of hybridization is actually wrong. But ठीक है, बाकी का point तो अच्छा है. Second point, the transition metal which forms the complex is considered like a positive ion, whatever its oxidation state, like Ni plus 2, Fe plus 3. That is the central point, which will be surrounded by ligands. You can have 6 ligands if it is octahedral complex, 4 ligands if it is square planar or tetrahedral. Ligands can be of two types. It can be anions or it can be neutral ligands. We know them such that electronegative atom will point towards the central metal atom. So they will be oriented. For example, if water is a ligand, oxygen will be oriented towards the central metal atom. Go through both these points. Any doubt before I go to the next one? Let us take third one. The electrons in the central metal are under repulsion forces from the ligands. We feel that ligands, when they come to the metal, they will happily form a bond. The theory doesn't approve that. They say that electrons of the central metal will face repulsion from the ligands. So the ligands are not immediately welcome to the system. They will face repulsion. This is very, very important point. Outermost electrons in d orbital will occupy the d orbitals which are away from the approach of ligands. Now, this is something very unique in the theory, which is not there earlier anywhere. They say, suppose we have d orbitals having 3 or 4 or 5 electrons. When ligands approach there, d orbital electrons rearrange themselves such that they have minimum repulsion experienced. So they can change their orientation, they can do some changes with the system so that ligand का जो electrons है उनका इसके साथ कम से कम repulsion होगा. Remember this point very well. ये अपने example में आने वाला है point. कैसे करते हैं we will see. So basic assumptions for crystal field theory. Number one, ligands are taken like point charges, either negative or neutral. No interaction between metal orbital and ligand orbital. अगर ऑर्बिटल में इंटरेक्शन है तो वो हो गया कोवैलेंट बॉन्ड. क्रिस्टल फील्ड थियरी सेज कि ऑर्बिटल में बिल्कुल ओवरलैप वगैरह कुछ भी नहीं है बिकॉज दे आर एज्यूमिंग कंप्लीटली ionic bond, electrostatic bond. Arrangement of ligands will be such that the repulsion should minimize.
यहां तक किसी को कुछ भी डाउट बिफोर वी गो अहेड? Next. Sir, Now, can you repeat the fourth point? one second. These points are the basic thing when we do the theory. First is ligands are only taken as point charge. Point charge का मतलब है we don't consider any of their orbitals. This is something like in physics you do electrostatics. There you consider one positive charge, one negative charge, having Coulomb force of attraction, repulsion. Exactly same way. This theory has been imagined in the same manner. So ligand like a charge, metal orbital like another point, and they will have force of attraction. अभी ये जो थर्ड पॉइंट था ये फिर से एक बार रीड करना क्योंकि नेक्स्ट स्लाइड उस पर डिपेंड है. प्लीज गो थ्रू दिस प्रॉपरली. इसका मतलब क्या है हम लोग नेक्स्ट स्लाइड में अभी डिटेल में जाने वाले हैं. How d orbitals are going to respond to the ligand's negative charge. So that is called splitting of d orbital energy. As we know, d orbital are of 5 types: dxy, yz, zx, x square minus y square, and z square. Now whenever they are present at the same energy level, the term used is degenerate. Degenerate का मतलब है सभी ऑर्बिटल का एनर्जी इक्वल है. When ligands will approach, repulsion is produced. These 5 orbital get divided in 2 groups. First is called T2G orbital group, which is XY, YZ, and ZX. And another one called EG group that will contain x square minus y square and z square orbital. So आपके जो 5 ऑर्बिटल एक साथ एक लेवल पे प्रेजेंट है वो 2 लेवल में स्प्लिट हो जाएंगे. एक T2G वाला ग्रुप और दूसरा EG वाला ग्रुप. कैसे पता चलेगा स्प्लिट हो गए कि नहीं? The orbital set which will experience more repulsion, it will go at a higher energy level. जो ऑर्बिटल सेट को रिपल्शन कम एक्सपीरियंस होगा उसका एनर्जी लो हो जाएगा. अभी ये ऐसे ग्रुप हम लोग ने कैसे बनाए? डिपेंडिंग ऑन देयर शेप्स. नाउ दिस आर dz स्क्वायर एंड x स्क्वायर माइनस y स्क्वायर. इसको हम लोग कहते हैं EG ऑर्बिटल्स. एंड दिस वन xy yz zx, दे आर कॉल्ड T2G. इफ यू रिमेंबर 11th स्टैंडर्ड में किया था हम लोगों ने. ये दोनों में क्या डिफरेंस है देखो. T2G वाले सेट के जो ऑर्बिटल्स है दे आर इन बिटवीन द एक्सिस, यू कैन सी. और EG के जो ऑर्बिटल्स है, लोब्स है, वो एक्सिस के ऊपर है एग्जैक्टली. दैट मेक्स these two orbital behaving differently than these orbitals. That's why these are together, they will always remain together. These two will always remain together. एकदम शांति से देखो क्या दिया है यहां तक, then we'll go in more details. Sir, this Basic, T2G and EG are just हाँ, names, na? they are the They are just names, na? They're like terms given. terms Yeah. given. Yeah, they are known as point group terms. अभी इसका डिटेल आपके 12th स्टैंडर्ड क्या BSc में भी नहीं है. So, sir, like, how do they actually like split, like in That's what we are reality? going to do in the answer right now. That's what we are going to do. उसी का डिटेल अभी करेंगे. Give me one moment. Give me one moment. Yeah. Okay. So any other doubt? How these get split and all that only we are going to see. We are going to take octahedral complex example, tetrahedral to see how the splitting happens. So I'm just here putting the theory. We are going to see that only now. Further, abhi who will experience repulsion, less repulsion, more repulsion? Let us understand. I'm going back to this diagram here. Let us make some drawing here. Imagine that these are your set of orbitals you have, and suppose our ligands are present over here. So imagine this way, ligands का position देखो, यहाँ पर ligand है, यहाँ पर है, यहाँ पर है, यहाँ पर. That means our ligands are present actually on the axis. So अगर ligands on the axis पे है
तो T2G वाले जितने ऑर्बिटल्स है दे विल एक्सपीरियंस लेस रिपल्शन। एट द सेम टाइम अगर आप यहां इन डायरेक्शन में सोचोगे तो आपको पता चलेगा लिगेंड्स और ऑर्बिटल के इलेक्ट्रॉन दे आर फेस टू फेस, दे विल एक्सपीरियंस मोर रिपल्शन। इज इट अंडरस्टूड कि लिगेंड्स और इसका पोजीशन क्या है, रिपल्शन कैसे एक्सपीरियंस होता है? इज एवरीवन फॉलोइंग, एवरीवन पेइंग अटेंशन? If you are doing Yes, any sir. other work in your hand, in your system, please stop it and 100% pay attention, नहीं तो टॉपिक समझ में नहीं आएगा। प्लीज स्टॉप एवरीथिंग एल्स फॉर 1 hour, प्लीज फोकस हियर। कुछ भी मत करना, कल के टेस्ट का रिवीजन कुछ भी रहेगा हाथ में बाजू में रख दो, फोकस हियर। आज ये करोगे, जब इसका टेस्ट आएगा तब रोना पड़ेगा फिर। आई रिपीट अगेन, दोज हु आर नॉट पेइंग अटेंशन, इफ लिगेंड्स आर प्रेजेंट ऑन द एक्सिस, T2G ऑर्बिटल के इलेक्ट्रॉन्स यहां पर प्रेजेंट है, तो लिगेंड्स और ऑर्बिटल का देखो एंगल है प्रेजेंट, दे आर नॉट फेस टू फेस। T2G will face less repulsion. At the same time, EG will face more repulsion. Is the topic clear? यहां तक समझ में आ गया सबको? रिपल्शन कैसे डिसाइड करते हैं? अभी कभी लिगेंड एक्सिस पे होते हैं, क्या होता है वो हम लोग एक्चुअल केस में देखेंगे। सो वही पॉइंट अभी यहाँ पे हाँ बोलो। So won't there be more electrons repulsion in the second one? Second, in the sense, Because all of these will behave in the same manner. no, And matlab all ki of like it's in middle of two electrons का that orbit. correct. So we So have to then see won't whether they it have is a more? head-on thing. तो ये देखो, ये हेड ऑन है, लिगैंड यहाँ पर है, आपका लिगैंड यहाँ पर है और इलेक्ट्रॉन सामने, तो ये हेड ऑन हो गया, तो इसका रिपल्शन सबसे ज्यादा। यहाँ पे एंगल होता है कुछ 35 डिग्री ऐसे कुछ एंगल होता है, तो उसके वजह से दे आर नॉट फेस टू फेस। अंडरस्टूड? Okay, sir. So all T2G will behave in the same manner, all EG will behave in the same manner. Of course, हम लोग आगे और एक नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे कि इसमें भी dz² और dx²y² में भी थोड़ा डिफरेंस रहता है, लेकिन वो आज के लेक्चर में नहीं आएगा, उसमें भी स्प्लिटिंग हो सकता है, लेकिन आज जो मैं केस करूंगा उसमें वो पार्ट नहीं है, जो नेक्स्ट लेक्चर में आएगा दिखाऊंगा वो भी मैं। सो दिस इज द पॉइंट व्हिच वी सेड, d orbitals lying in the direction of ligands face more repulsion, and due to the repulsion their energy will increase than the original energy level. D orbitals lying in the other direction, not face to face, will experience repulsion but lesser one. ऐसे नहीं कि रिपल्शन नहीं होगा, रिपल्शन होगा लेकिन कम क्वांटिटी में थोड़ा होता है। Now this energy difference which we split here is known as crystal field splitting energy, represented by this symbol triangle that is called delta, and the unit of this is called 10 dq. Delta depends upon geometry of the complex, whether it is octahedral, tetrahedral, square planar. Most probably today we are going to see octa and tetrahedral. Square planar we will see in the next lecture. अभी इसका क्या मीनिंग है? I'll give it with a little diagram here to understand a little better. क्योंकि जो What is DQ? I'm just coming to that only. Okay. Imagine this way that you have, this is the original level of 5d orbitals you have. I'm explaining the process of how the things happen in this whole crystal field theory. So imagine these are your 5d orbitals you have, and all of these are at the same energy level, 1, 2, 3, 4, 5. So these are the d orbitals, and since they are at the same energy level, you call them degenerate. अभी ये कंडीशन कभी होगा जब लिगैंड्स एब्सेंट है, सिर्फ अपना एक सिंगल मेटल एटम बैठा है, आजू बाजू में कोई लिगैंड्स नहीं है। दिस इज द एनर्जी एक्सिस फॉर कंपैरिजन। सो अभी इसका एनर्जी ये लेवल पे कुछ है, कुछ 100 किलो जूल, 200 व्हाटएवर। अभी इमेजिन करो ये मोमेंट में आपका लिगैंड्स मेटल को अप्रोच करना चालू करता है, तो जैसे ही लिगैंड्स के इलेक्ट्रॉन्स आएंगे आसपास, लिगैंड आएगा, तो इसका देखो रिपल्शन चालू हो जाएगा।
तो रिपल्शन का मतलब है it has increased its energy. So now all these orbitals once again are degenerate only. अभी तक splitting नहीं हुआ है, but now ligands have approached. So because of this, the energy has increased. यहां तक ठीक है, समझ में आ रहा है करेक्टली? लिगैंड्स अप्रोच हो गए, एनर्जी इंक्रीज हो गई, लेकिन फिर भी अभी भी T2G और EG ऑर्बिटल साथ में ही है, उनमें स्प्लिटिंग अभी तक नहीं हुआ है. नाउ दे विल फेस द रिपल्शन, मतलब जो ऑर्बिटल लिगैंड के सामने है. सो इमेजिन करो, ऐसा आपका कंडीशन है कि ये आपके एक्सिस, आई एम जस्ट रिप्रेजेंटिंग वन ऑर्बिटल हियर. So ligands are present here, let us say, on the axis. So this is the position of ligands, let us assume. And all T2G orbitals are present like this. And EG orbitals are going to be this way. So now we can understand, दोनों को रिपल्शन एक्सपीरियंस हो रहा है, लेकिन इसको रिपल्शन कम होगा, इसको ज्यादा होगा. तो अभी क्या कंडीशन होने वाला है? ये दोनों अपने आप में फिर से स्प्लिट हो जाएंगे. तो एक का एनर्जी इससे कम होगा, दूसरे का ज्यादा होगा. सो नाउ यू कैन इमेजिन दिस वे द स्प्लिटिंग हैज टेकन प्लेस. तो इसमें से सपोज लेट अस से T2G ने लेस एक्सपीरियंस किया है, EG ने ज्यादा किया है. तो ये 5 ऑर्बिटल अभी T2G और EG लेवल में स्प्लिट हो जाएंगे. जो इनका ओरिजिनल सेंटर था वो यहां पर रहेगा. दिस इज कॉल्ड बैरी सेंटर. इन फिजिक्स टर्म दिस इज लाइक सेंटर ऑफ ग्रेविटी, यू कैन इमेजिन. अभी ये दोनों में जो एनर्जी डिफरेंस ऑर्बिटल्स में होता है, दिस इज रिप्रेजेंटेड एज डेल्टा, और दे कॉल्ड द टर्म 10dq. दिस इज द यूनिट ऑफ मेजरमेंट. यू कैन सी कि ये इक्वल डिवीजन नहीं है, देखो ये अलग है और ये थोड़ा अलग है. Have you understood what has happened in this? Perfectly clear so far. अभी जो थियरी सुना था उसका ये मतलब है. अगर केस उल्टा है तो ऐसे भी हो सकता है T2G ऊपर EG नीचे, ये भी पॉसिबल है. मैंने यहाँ पे ऐसा केस दिया जिसमें ये पॉसिबल दिख रहा है मुझे. यहां तक किसी को कुछ भी डाउट? वेरी बेसिक थिंग आई हैव डन. Sir, बोलो. like, is there any way to identify that how many orbitals are T2G and how many orbitals are EG? T2G and EG are always fixed. वो चेंज नहीं होता है तेरा. No, T2G after मतलब, the repulsion, like after हाँ the मतलब split. नीचे कौन है ऊपर कौन है ये बोल रहा है ना तू? हाँ sir. Of course there are ways, and the ways are to by identifying their color, wavelength and magnetic properties. ये करेंगे हम लोग आज. हम लोग रिकॉग्नाइज कैसे करना है ये भी करेंगे. हर एक में इलेक्ट्रॉन कितना है ये भी करेंगे हम लोग, इसका डिटेल और करने वाले. फिर इलेक्ट्रॉन डालने के बाद इसमें एनर्जी उसका क्या है ये भी हम लोग कैलकुलेट करेंगे. इसमें न्यूमेरिकल प्रॉब्लम भी करेंगे हम लोग. वी आर गोइंग इन एब्सोल्यूट डेप्थ ऑफ दिस. जो थियरी आज थर्ड ईयर BSc के स्टूडेंट्स पढ़ते हैं वही थियरी आप आज पढ़ रहे हो. एग्जैक्टली सेम थिंग. आप TY BSc केमिस्ट्री का इनऑर्गेनिक का बुक निकालो, आपको यही सब उसमें दिखेगा. यू आर नॉट डूइंग अ सिंगल वर्ड लेसर देन देम. यू आर डूइंग अ ग्रेजुएशन केमिस्ट्री लेवल टॉपिक. अभी So, जस्ट sir, मैंने चालू किया है बस, और डिटेल में जाना है. बोलो. so it's possible that T2G is above EG. यस ऑफ कोर्स, आज ही करेंगे हम लोग. So, but then EG is more more नहीं नहीं, repulsive. दैट डिपेंड्स ऑन वेयर आर योर लिगैंड्स. तो लिगैंड्स ज्योमेट्री वाइज मतलब ऑक्टाहेड्रल में अलग होता है, टेट्रा में अलग और स्क्वायर प्लेनर में अलग. So the energy depends हाँ. upon the repulsion, right? विच एनर्जी आर यू सेइंग? एक मिनट में व्हाइट डायग्राम like- निकाल. ये कौन सा, ये 10dq वाला बोल रहा है? हाँ sir. हाँ, ये लिगैंड पे डिपेंड होता है. नंबर 2 ये ज्योमेट्री पे भी डिपेंड होता है. उसके भी फॉर्मूले हैं हम लोग को, उसके भी So it's प्रॉब्लम. not necessary that EG is always has high energy. No, not at all, not at all. That's what I said, not at all. I have just given a theoretical thing. It can be opposite. T2G ऊपर EG नीचे, very much possible. फिर हम लोग और एक करेंगे नेक्स्ट लेक्चर में जिसमें इसमें वापस से स्प्लिटिंग होगा,
फर्दर स्प्लिटिंग, वो भी पॉसिबल है, वो भी करने वाले हैं. तो दिस इज अ वेरी बेसिक केस आई हैव शोन. हाँ बोलो. So in the splitting, can it be like Eg gets 3 orbitals and No. T2G? एक मिनट, let me explain. This letter T is triple. So triple is XY, YZ, ZX. So there are 3 which indicates triple. So ये T को हम लोग 2 ऑर्बिटल नहीं लिख सकते. These are German words which are used. So इसका डिटेल हम लोग नहीं करेंगे. But remember that T2G is always these orbitals only. They are fixed numbers. Chalo, now we apply whatever we have learned to a complex of octahedral, then tetrahedral, square planar. इसमें से octahedral आपको डिटेल में सिलेबस में है. टेट्राहेड्रल आंसर्स वैसे भी ज्यादा है नहीं, और स्क्वायर प्लेनर नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग करेंगे, आज नहीं होगा स्क्वायर प्लेनर का. ऑक्टाहेड्रल सबसे बड़े आंसर्स हैं. I'll go back to the whiteboard. Thank you, sir. So what is the basic thing? Octahedral means there are 6 ligands present. M metal, 6 ligands. Metal will be imagined to be placed at the center of the regular octahedron. Diagram दिखाऊंगा मैं. 6 ligands are at the 6 vertices of the octahedron. So this is the metal. ये मेटल जो फर्स्ट उन्होंने ड्रॉ किया है, इसका मतलब है कि अभी कोई भी लिगैंड ने अप्रोच नहीं किया है, इसलिए ये सिंपल डायग्राम. इसका मतलब है कि ligands have started approaching and it has started the repulsion, and now metal ligands bond have produced. अभी ये है आपका octahedral का डायग्राम. देखो मेटल कहां पर है, ligands कहां पर है. आराम से देखो, आपको ligands तीनों एक्सिस पर दिखेंगे. देखो x एक्सिस पर 2, y एक्सिस 2 and z एक्सिस 2. So can you think in octahedral who will face more repulsion, Eg or T2G? Ligands are on the axis. Answer first. Eg orbital. तो मैंने जो आपको व्हाइट बोर्ड पे डायग्राम दिखाया था, वो ऑक्टाहेड्रल का मैंने ड्रॉ करके दिखाया था. अभी कैसे होता है ये भी यहाँ पे दिखाया. देखो ये आपके Eg ऑर्बिटल्स है, तो ये dz स्क्वायर और dx स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर. सीधा सीधा देखो, देखो इस ऑर्बिटल के सामने लिगैंड, ये ऑर्बिटल के सामने लिगैंड. देखो क्लियरली दिख रहा है कि Eg सेट इज गोइंग टू फेस ट्रिमेंडस रिपल्शन, एनर्जी विल बी इंक्रीजिंग, वाइल इनके ऑर्बिटल के डायरेक्शन और लिगैंड डायरेक्शन, दे आर इन डिफरेंट डायरेक्शन ऑल टुगेदर. They will also experience repulsion but lesser one. Go through this. ये कोई भी डायग्राम आपको किसी भी एग्जाम में ड्रॉ नहीं करने हैं, ये ओनली अंडरस्टैंडिंग के लिए मैंने दिए डायग्राम्स. वैसे भी अभी ये टॉपिक एचएससी में है नहीं, तो आपको वैसे भी ये सिर्फ समझने का टॉपिक है, बैठ के आंसर्स मगअप करने की जरूरत नहीं है. सो नाउ यू कैन सी दिस इज व्हाट हैपेंस. ये आपके 5 डी ऑर्बिटल डी जनरेट. ये बेरी सेंटर, सेंटर ऑफ ग्रेविटी कहते हैं इसको. ये आपके ऊपर के Eg ऑर्बिटल 2 और ये नीचे के ऑर्बिटल. ऑल्सो ऑब्जर्व, ऊपर का जब एनर्जी है तो वो है 0.6 डेल्टा ऑक्टाहेड्रल या फिर 6 dq. नीचे का है 4 dq और 0.4 डेल्टा ऑक्टाहेड्रल. डायग्राम देखेंगे, अगर ये 100 सेंटीमीटर है, आई एम सॉरी 10 सेंटीमीटर है, तो ये होगा 6 सेंटीमीटर, ये है 4 सेंटीमीटर. 60-40 के रेशियो में ये डिवाइड हुआ है. Sir, Eg always contains dx square minus y square and dz yes, square. ये कभी चेंज नहीं होगा. यस, दैट्स व्हाट सो मस्ट. तो T2G मतलब वही ऑर्बिटल, Eg मतलब वही, उसको चेंज नहीं कर सकते हम लोग. दीज आर फिक्स्ड ऑर्बिटल्स. चलो गो थ्रू दिस पैरा बिफोर वी गो मोर अहेड. अभी ये नंबर्स आप लोग बाय हार्ट करके रखना, इस पे हम लोग को न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स करना है. जेई और नीट में लास्ट 10 ईयर्स से इसी पे क्वेश्चंस आ रहे हैं, प्रॉब्लम्स. मैं सभी जो पॉसिबल प्रॉब्लम है आपको इसमें देने वाला हूं. दिस इज अ वेरी वेरी स्कोरिंग टॉपिक. प्रे टू गॉड कि आना चाहिए नीट या जेई में. बहुत सिंपल है, क्वेश्चन भी इजी आते हैं इस पे. sp3d d2 sp3 वाला टफ था, मैं बोल रहा हूं ये उससे भी इजी आने वाला है. ओके, ऑब्जर्व, जब आपका इलेक्ट्रॉन नीचे के ऑर्बिटल में होगा
तो देखो साइन है उसको माइनस, माइनस साइन का मतलब है वो इलेक्ट्रॉन सिस्टम को स्टेबल कर रहा है, और पॉजिटिव साइन जब इलेक्ट्रॉन ऊपर जाएगा मतलब है उसका इलेक्ट्रॉन अनस्टेबल कंडीशन में है। तो जितने इलेक्ट्रॉन आपके Eg वाले में रहेंगे, ऊपर वाले में, वो सभी अनस्टेबल होंगे, और T2G is going to make the things little stabilized. This is crystal field splitting energy. So these are fixed values, right? For Which this. one? Yeah, these are fixed value. Ligand wise क्या चेंज होता है कि इंडिविजुअल एनर्जी चेंज होती है। मैं दिखाऊंगा आपको, एक्चुअल एग्जांपल लेके दिखाऊंगा। तो उन्होंने क्या बोला है कि ये टोटल जो एनर्जी है ना, इसको हम लोग लिखेंगे 10 DQ। अभी जब हम लोग इसको किलो जूल में कन्वर्ट करेंगे तो वैल्यूज अलग अलग आएंगे। तो सपोज कोई टाइटेनियम वाटर का कॉम्प्लेक्स है तो इसका वैल्यू होगा 500, निकेल वाटर है मे बी इट इज 400, लेकिन 400 हो 500 हो, हम लोग नाम देते हैं उसको डेल्टा ऑक्टाहेड्रल ओनली, जनरल सिंबल फॉर दैट। किलो जूल वाइज ऑफ कोर्स एनर्जी इज डिफरेंट। So it can be anything, but it is this 6 and minus हाँ, 4. वो 60-40 रेशो सेम रहेगा दोनों में, टोटल वैल्यू अलग होगा। तो सपोज टोटल एनर्जी 1000 जूल है, किलो जूल है, तो ऊपर की तरफ 600, नीचे की तरफ 400, समझा? Okay. तो अभी ये एनसीईआरटी वालों ने दो डायग्राम्स दिए, जो मैंने अभी आपको पहले दिखाया 60-40 वाला, और ये एक 3/5 और 2/5 के टर्म्स में भी है। तो दोनों वैल्यूज आप ध्यान में रखो कि ये -2/5 एंड दिस इज +3/5। ये नोटेशंस एक्चुअली पॉपुलर नहीं है, एनसीईआरटी ने दिया है लेकिन पॉपुलर नहीं है। व्हाट इज पॉपुलर इज दैट 4 and 6 ओनली। तो उससे हम लोग, मतलब एनसीईआरटी ने खुद कभी नीट या जेईई में इस पे क्वेश्चन नहीं पूछा है। दे हैव ऑलवेज आस्क्ड ऑन 4 and 6 ओनली क्वेश्चंस। तो ये डायग्राम खाली ध्यान में रखना, ऐसे भी आ सकता है। अच्छा, ये पार्ट मैंने आपको पहले भी दिखाया था, स्पेक्ट्रोकेमिकल सीरीज। आई एम जस्ट डिस्प्लेइंग इट, आई होप यू विल रिकलेक्ट दिस, गो थ्रू दिस। इसका आज बहुत इंपॉर्टेंट आज के लेक्चर में ये पार्ट होने वाला है। इफ यू कांट रिकलेक्ट प्लीज आस्क मी, बट गो थ्रू दिस वंस। अभी आपको शायद ये स्प्लिटिंग पावर का क्या मीनिंग है, इसका ज्यादा मीनिंग समझ में आएगा। इफ यू रिमेंबर, हम लोग ने डी ब्लॉक एलिमेंट्स और एफ ब्लॉक एलिमेंट के टाइम डी डी ट्रांजिशन, एफ एफ ट्रांजिशन सुना था। उसका मतलब अभी शायद आपको आज समझ में आएगा। इलेक्ट्रॉन इज इन लोअर डी ऑर्बिटल T2G, it goes to the higher energy level EG, that's called DD transition. That gives you color to the complex. I hope you remember this. ये सीरीज आपको बाय हार्ट करना है। They ask questions on this definitely. ओके, अभी ये जो हम लोग ने देखा, इसमें हम लोग ने दो पॉइंट देखे, एक तो वीक फील्ड लिगेंड्स, स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड्स। तो क्या मतलब हो सकता है वीक फील्ड और स्ट्रॉन्ग फील्ड का? लेट मी एक्सप्लेन इट सेपरेटली। डायग्राम ड्रॉ करके दिखाता हूं, then we'll come back to the explanation. Imagine these are the original 5d orbital degenerate state, and we have a weak filled ligand present. तो weak filled का मतलब है कि ये जो splitting है ये ज्यादा नहीं है। This I am taking considering as less difference in energy. Compared to that, there is some other ligand which is able to split these orbitals in a more better manner. Perhaps like this. So अभी देखो, ये जो T2G EG का डिफरेंस है, this is extremely large. So जो कॉम्प्लेक्स ये स्मॉल डिफरेंस करेगा, उस लिगेंड को हम लोग कहेंगे वीक फील्ड लिगेंड. And the one which can split the orbitals in a more larger way, these are called strong filled ligand. To remember it easily, all the electronegative elements, इनके जो ligands होते हैं, जैसे halogens, oxygen, they are all weak filled, and carbon based
nitrogen based ligands, they are all strong field ligand. A rough calculation, rough way of remembering, 100% इट्स नॉट करेक्ट क्योंकि थोड़ा ओवरलैपिंग भी हो सकता है. ये मीनिंग समझ में आ गया सबको? वीक फील्ड और स्ट्रॉन्ग फील्ड का मतलब क्या है? एनीबॉडी हैज अ डाउट इन दिस बिफोर आई गो अहेड? अगर आप जनरल ऐसे इनका एनालिसिस देखोगे तो halide ligands, then comes oxygen ligands, then comes nitrogen ligands, and then come कार्बन बेस्ड लिगैंड्स. तो ये ऐसे हम लोग इसको थोड़ा इमेजिन कर सकते हैं रफली. सो स्पेक्ट्रोकेमिकल सीरीज इज लाइक दिस. यहां तक ठीक है? शैल आई गो अहेड? एनी डाउट इन दिस? अभी इमेजिन करो कि हम लोगों के पास वी हैव D4 एज कॉन्फ़िगरेशन. तो कोई ट्रांजिशन एलिमेंट है जिसके पास 4 इलेक्ट्रॉन्स है d ऑर्बिटल में. तो हम लोग अभी इसको यहां पे अगर ड्रॉ करेंगे, so how the filling of electrons take place, let us see. And if you follow this, then you follow the whole remaining chapter. ये आपका कंडीशन है Eg और T2G का. Okay, watch 100% focus here. 4 electrons, 1, 2, 3, 4, ऐसे ही यहां पर. अभी हम लोग इलेक्ट्रॉन को फिल करेंगे T2G और Eg में. Always electron filling goes from lower orbital later on to higher one. तो काउंट करो मैं इलेक्ट्रॉन को कैसे फिल कर रहा हूं. फर्स्ट, सेकंड, थर्ड. अभी ये एनर्जी डिफरेंस है, दिस इज वेरी लेस. सो फोर्थ इलेक्ट्रॉन कैन अफोर्ड टू गो ओवर हियर. कम ओवर हियर एंड सी. स्ट्रॉन्ग फील्ड में 1, 2, 3. ये एनर्जी डिफरेंस इतना लार्ज है कि इलेक्ट्रॉन सोचेगा अगर मैं यहां पे जाऊं उससे अच्छा मैं नीचे ही रहता हूं. This is the difference in weak field and strong field ligands. That is why you will see weak field वाले जो ऑर्बिटल के कॉन्फ़िगरेशन होते हैं, they are usually called high spin compounds or complexes. क्यों हाई स्पिन समझ में आ गया? प्लस हाफ, प्लस हाफ, प्लस हाफ, प्लस हाफ. देखो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन का नंबर बहुत ज्यादा है यहां पर, और इनको हम लोग कहेंगे लो स्पिन कॉम्प्लेक्सेस, क्योंकि इसमें नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन देखो कम है. यहां पे नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हो गए 4, यहां पे हो गए सिर्फ 2. अकॉर्डिंग टू दिस मैग्नेटिज्म चेंजेस. वीक फील्ड लिगैंड्स विल शो पैरा और फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंसेस. स्ट्रॉन्ग फील्ड विल शो वीकली पैरा या फिर समटाइम्स डायामैग्नेटिक ऑल्सो. अरे सब लोग जिंदा है क्लास में? समझ में आ रहा है क्या चल रहा है? Yes, sir. Any doubt? Yes. This is the most basic Can thing. you repeat the filling part? Yes, I'm going to take D1 to D10 all the cases. खाली ये D4 का मैं यहाँ पे एक्सप्लेन कर रहा हूँ. स्लाइड्स में पूरे के पूरे सब है. सो यहाँ पे देखो D4 में हम लोग ने यहाँ सब्स्टिट्यूट किया 1, 2, 3, 4. तो सब्स्टिट्यूट करने के टाइम क्या करेंगे? 1, 2, 3. एनर्जी डिफरेंस स्मॉल है तो तू ऊपर चला जा. यहां देख ये 4 है तो ये 1, 2, 3. एनर्जी डिफरेंस बहुत ज्यादा है, ऊपर जाना उसको पॉसिबल नहीं है, वो यहीं पे करेगा. इज दिस अंडरस्टूड करेक्टली? Yes, sir. चलो जिनको चाहिए इसका स्क्रीनशॉट लेके रखना. चलो कमिंग बैक टू अवर स्लाइड्स. अभी आपको बहुत इजी लगेगा. सो ये अपना हाई स्पिन वीक फील्ड वाले का पैराग्राफ है.
एग्जाम में शॉर्ट नोट करके HSC में आता था, इसके लिए बना है, बट अभी आपको HSC में है नहीं. गो थ्रू इट क्विकली. Rather than this, you must have followed that part with a diagram. ये सब अपने नोट्स का ही पार्ट है, कुछ नया है नहीं, वहां से मैंने लिया लेके स्लाइड्स बनाया है. चलो, वन मोर थिंग नाउ. जो हम लोग अभी देखा था कि इलेक्ट्रॉन नीचे अगर रहता है तो वो पेयरिंग कर रहा है, दैट इज कॉल्ड पेयरिंग एनर्जी. सो इफ इलेक्ट्रॉन इज गेटिंग पेयर्ड, देन इट इज हैविंग पेयरिंग एनर्जी. ये सब अभी जो हम लोग ने किया था वही है. गो थ्रू दिस. सो मैंने केस यहाँ पे फिर से D4 का ही केस लिया है. फोर्थ इलेक्ट्रॉन कैसे फिल करेंगे, उसी का केस. डायग्राम सोच के करोगे तो ज्यादा इजी दिखेगा, rather than writing this way. So is it possible that if the energy difference is too high, हाँ. that one electron does not even go up even though the bottom half is fully filled? नहीं, when it is completely filled, नीचे suppose all 6 electrons are filled, 7th has to go above. उसके लिए चॉइस ही नहीं. 7 इलेक्ट्रॉन है तेरा, तो वो कितना भी ज्यादा एनर्जी है उसको ऊपर ही जाना पड़ेगा. So it's a energy costly process, but it has to take place. When there is a choice, we did it. When there is no choice, electron has to go above. चलो, अभी हम लोग इसका कैलकुलेशन देखेंगे. इस पे आपको न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स आते हैं, एकदम ध्यान देना प्रॉपरली. Every electron, when you put it in T2G, lower orbital, its energy is taken as minus 0.4 delta octahedral और 4dq, minus 4dq. इलेक्ट्रॉन जब ऊपर के ऑर्बिटल में आप रखोगे, उसका एनर्जी हम लोग काउंट करेंगे प्लस 0.6 डेल्टा ऑक्टाहेड्रल. सो अगर T2G ऑर्बिटल में x इलेक्ट्रॉन्स है और EG ऑर्बिटल में y इलेक्ट्रॉन्स है, तो फॉर्मूला बिकम्स माइनस 0.4 इंटू एक्स प्लस 0.6 इंटू वाई. सो अभी हम लोग कैलकुलेट करके देखेंगे. मैं पहले आपको, सबको बाय हार्ट हो गए नंबर से, नीचे वाले का 0.4, ऊपर वाले का 0.6. ओके, चलो लेट अस सी दिस एंड प्लीज हेल्प मी इन कैलकुलेशन. ये आपके T2G और EG ऑर्बिटल्स हैं. इलेक्ट्रॉन अगर नीचे आता है तो कितना एनर्जी बोला हम लोगों ने, कितना एनर्जी होता है इसके लिए? एवरी इलेक्ट्रॉन माइनस 0.4 डेल्टा ऑक्टाहेड्रल फॉर ईच इलेक्ट्रॉन हियर Plus प्लस 0.6. 0.6. ओके, ध्यान में रखना, हेल्प मी इन कैलकुलेशन. अगर मेरे पास है इलेक्ट्रॉन D1, इलेक्ट्रॉन यहां पर जाएगा, तो D1 का क्रिस्टल फील्ड एनर्जी कितना होगा? माइनस 0.4 डेल्टा ऑक्टाहेड्रल. ओके, D2 में इलेक्ट्रॉन है, तो 2 इलेक्ट्रॉन, एक यहाँ पे दूसरा यहाँ पर, तो होगा minus माइनस 0.8. अगर D3 है तो होगा 1.2, 0.4 इंटू 3. यहां तक ठीक है, बरोबर समझ में आ गया करेक्टली? अभी D4 ऑनवर्ड्स क्या होगा? दो चॉइसेस हो सकते हैं, एक तो स्ट्रॉन्ग फील्ड या फिर वीक फील्ड. तो सपोज D4 अगर स्ट्रॉन्ग फील्ड में है, स्ट्रॉन्ग फील्ड का मतलब क्या है? एनर्जी डिफरेंस बहुत ज्यादा है, तो वो नीचे ही रहेगा, Minus 1.6. माइनस 1.6. अगर वीक फील्ड में होता Plus 0.6. तो 3 यहां पर, चौथा यहां पर, minus 0.6. माइनस 0.6. ये आया समझ में सबके, कैसे कैलकुलेशन कर रहे हैं? So why will it still be minus when it goes up? 0.4 इंटू 3, ये नीचे का एनर्जी, प्लस ऊपर का एनर्जी 0.6. कैलकुलेट करके देख, आई बात समझ में? सर एक बार D4 का रिपीट करूं? ये देख, D4 का अगर स्ट्रॉन्ग फील्ड है, स्ट्रॉन्ग फील्ड, मैं इसको निकाल देता हूं. स्ट्रॉन्ग फील्ड, तो स्ट्रॉन्ग फील्ड में इलेक्ट्रॉन कहां जाएगा अपना?
एनर्जी डिफरेंस ज्यादा है, फोर्थ इलेक्ट्रॉन यहाँ पे जाएगा, करेक्ट? तो Yes, sir. आपका वैल्यू कितना होगा? 4 इंटू माइनस 0.04, तो कितना हो गया आंसर? एनीबडी हैज डाउट इन दिस? ये श्योरली समझा। अगर वीक फील्ड है तो इलेक्ट्रॉन ऐसे रहेगा, तो कैलकुलेशन कैसे होगा? इसका नीचे का 3 इंटू माइनस 0.4 मतलब हो गया -1.2, और ऊपर का इलेक्ट्रॉन का वैल्यू प्लस 0.6, तो कितना हो गया आंसर? -0.6 डेल्टा ऑक्टाहेड्रल। इज दिस ऑल राइट? एवरीवन अंडरस्टूड इट? जिनको इसका स्क्रीनशॉट चाहिए ले लो, मैं स्लाइड्स पे आपको D1 to D10 सभी वर्कआउट करके दिखा रहा हूं। सर जो वीक वाला होगा वो बड़े नंबर के पास जाएगा ना? वीक वाला है, देख ध्यान में रखे, ऐसे वीक वाला है तो तेरे पास डिफरेंस कम है, बरोबर? तो 1 2 3 4th। स्ट्रॉन्ग वाला है तो डिफरेंस इज मोर, वो ऊपर नहीं जा सकता, वो नीचे ही बैठेगा, समझा? यस सर। और जितने इलेक्ट्रॉन हम लोग नीचे डालेंगे, हर एक इलेक्ट्रॉन का वैल्यू 0.4 0.4 0.4, ऊपर जितने रखेंगे हर एक का वैल्यू 0.6, बस टोटल करो सबका, आपको आंसर मिल जाएगा। ये आपको एग्जाम में प्रॉब्लम्स आते हैं, सिर्फ आपको वहां रिकॉग्नाइज करना है कि दिया हुआ लिगेंड स्ट्रॉन्ग फील्ड है या वीक फील्ड, वो आपको नहीं देंगे एग्जाम में, इसलिए स्पेक्ट्रोकेमिकल सीरीज आपका बाय हार्ट होना चाहिए। तो अगर फ्लोराइड है तो फ्लोराइड इज हैलोजन, हैलोजन इज वीक फील्ड, तो वो क्या दिखाएगा वो आपको आना चाहिए, दैट्स अ डिफिकल्ट पार्ट ओनली। सो लेट अस कम बैक। So what do we consider? दिखाता हूं मैं, वाटर इज इंटरमीडिएट, दिखाता हूं मैं, उसके भी एग्जांपल लिए मैंने। D1 कॉन्फ़िगरेशन होगा T2G1, सो एक ही इलेक्ट्रॉन है। D2 ये मैंने अभी आपको सब कैलकुलेट करके दिखाया था, वही मैंने यहां पे लिया है। ये 3 कॉन्फ़िगरेशन में आपको कोई फर्क नहीं पड़ेगा कि वो वीक फील्ड है या स्ट्रॉन्ग फील्ड है, बिहेवियर विल बी आइडेंटिकल। अभी देखते हैं D4 ऑनवर्ड्स क्या क्या होगा, आराम से देखना, केयरफुली पे अटेंशन टू द स्क्रीन। D4 कॉन्फ़िगरेशन में स्ट्रॉन्ग फील्ड में ये मेरा T2G, ये EG, the orbital difference is large, so first electron, second electron, third electron, बोलो फोर्थ इलेक्ट्रॉन कहा जाएगा, EG या T2G? T2G. T2G, energy gap is large, fourth electron prefers to stay in the lower zone only, तो अभी CFAC आपका आएगा यहाँ पे -1.6। इज दिस अंडरस्टूड एवरीवन? समझा अभी बरोबर सबको? Yes. वीक फील्ड देखो, वही फिर से T2G, लेकिन देखो EG अभी नजदीक है, एनर्जी डिफरेंस इज स्मॉल, सो 1 2 3 energy difference is small, it can go for the higher energy level, so CFAC will be 3 into 0.4 into plus 0.6 minus, यहाँ पे छोटा मिस्टेक है, ये 3 नहीं होना चाहिए यहाँ पे, सॉरी दिस माइनस शुड नॉट बी देयर, क्योंकि मैंने माइनस अंदर लिखा है। ऐसे हम लोग D10 तक जाएंगे, एक एक केस देख के। D4 समझा सबको करेक्टली? स्ट्रॉन्ग वीक। D5 देखो, सेम काइंड ऑफ थिंग नाउ, स्ट्रॉन्ग फील्ड में T2G EG, 5 इलेक्ट्रॉन है, स्ट्रॉन्ग फील्ड है, 1 2 3, फिर से फिफ्थ एंड फोर्थ विल स्टे लोअर ओनली, फोर्थ एंड फिफ्थ। अभी बोलो CFAC कितना आएगा इसका? -2. -2। एवरीवन गॉट इट? 5 इलेक्ट्रॉन इंटू Yes. 0.4, यही चीज अभी वीक फील्ड में T2G EG, ट्रिक समझ में आ गया सबको? बहुत इजी है। 1 2 3 4 and 5, so -1.2 plus So 0. 0, yes correct, this will be 0। ये सिस्टम आपका सबसे स्टेबल सिस्टम होगा, क्योंकि एनर्जी डिफरेंस 0 है, मतलब
सबसे स्टेबल सिस्टम, बट हाईली पैरामैग्नेटिक इन नेचर, 5 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स है। हम लोग अभी ये जनरल दिखा रहे हैं, फिर इसके हम लोग केसेस लेंगे कि हर एक केस में आपको एग्जाम में प्रॉपर केस आएगा, वो भी मैं सॉल्व करके दिखाऊंगा आपको। D6, कैन आई गो लिटिल क्विकली नाउ? 1 2 3 4 5 6। I hope everyone will understand this now. 1 2 3 4 5 and 6. I have displayed the thing. Go through it. Doubt है तो बोलो। आपको सिर्फ ऑक्टाहेड्रल के ही कैलकुलेशन है सिलेबस में, बाकी के किसी के न्यूमेरिकल प्रॉब्लम नहीं है। तो ये 0.4 और प्लस 0.6 इतना आपको याद रखना है, और आपको कोई दूसरे नंबर्स नहीं आएंगे। देयर विल नॉट बी एनी कंफ्यूजन। Sir, बोलो। so in that weak field, can it add to the EG orbital only, the 6th electron? अरे EG ऑलवेज अफबाउ प्रिंसिपल, हंड्स रूल भूलना नहीं चाहिए। इलेक्ट्रॉन जब हम लोग ऑर्बिटल में फिल करते, इट विल स्टार्ट फ्रॉम लोअर, व्हेन लोअर इज कंप्लीटली फिल्ड इट गोज टू हायर। हंड्स रूल, पेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन, ये सब रूल्स यहाँ पे फॉलो होते हैं। तो यू कांट सेंड दिस इलेक्ट्रॉन सडनली हियर, बिकॉज ये अभी तक कंप्लीटली भरा नहीं है। करेक्ट। D7 Sir, सेम मैनर। हाँ बोलो। in weak field, why does it go even though कौन in सा वाला? weak field? D6 में। So like any example में, हाँ why does the electron go on above when lower one will be lesser energy? कहाँ पे? यहाँ पे बोल रहे हैं D6 हाँ में। sir. So why does नहीं देखो, one ये electron go इलेक्ट्रॉन up? ओरिजिनली कहाँ के हैं? ओरिजिनल, दे आर ऑल 5 degenerate d orbital electrons only. They all belong to the d orbitals only. So these are all d orbitals. So when you are filling them, they are just getting split in the two set, right? So वो तो fill अपने आप हो जाएंगे, सभी d orbital ही है। See when I say कि यहाँ पे इलेक्ट्रॉन, suppose I am going back for a moment, एक पीछे वाला दिखाता हूँ, शायद आपको उसमें डाउट होगा। You might ask why all these upper electrons are not getting filled here only. That's your doubt, right? Yes sir. So think in this way, these 5 orbitals, when they are present together, how you would have filled 5 electrons? 1 2 3 4 5. सिर्फ अभी ऊपर नीचे split हो गए, that's the only difference. Otherwise these are all originally d orbitals only. ऐसा नहीं कि नीचे के p और ऊपर के d orbital, ऐसा नहीं है, सभी d orbital ही है। That's why the filling happens that way. So I'm going for D7. 1 2 3 4 5 6 7th electron has to go here and in weak field. Check my calculation. ये कैलकुलेशन वाला पूरा सेक्शन GTB ने कैंसिल कर दिया है, गायब कर दिया है ही नहीं। मतलब कैंसल्ड सिलेबस नहीं, ओरिजिनल सिलेबस में ही गायब कर दिया पूरा। All whatever is important for NEET and JEE, categorically they have made it disappear. Now D8, 9 and 10, once again, just like D1, 2, 3, they will be irrespective of whether strong or weak. So मैंने जैसे पहले था वैसे ही डायरेक्टली लिखा है यहाँ पे D8, 9, 10. आप खुद फिल करके देखो, आपकी समझ में आएगा 8, 9, 10 के टाइम whether it is strong or weak, filling happens in a same manner. Now on what factors this crystal field splitting energy depends? Factor number 1, which ligand are we using? Strong field or weak field? Obviously. Go through this. मैंने short में आपको आंसर बताया, strong field, weak field will decide the splitting. 7000 अगर रेंज में है तो मतलब वो स्ट्रॉन्ग फील्ड में आता है, 30,000 मतलब वो वीक में जाएगा, स्ट्रॉन्ग में जाएगा, सॉरी। This is totally based on the spectrum, spectrochemical series. Second is charge on the metal ion. This is a very interesting one. You can see here with an example. Let me show you. देखो आपके पास कोबाल्ट का कॉम्प्लेक्स है, CO+3 और CO+2, दोनों में लिगेंड सेम रखा है वाटर, बट कोबाल्ट विथ
+3 charge is showing more splitting than cobalt with +2. Same way, iron with +3 shows more splitting energy than Fe +2. So now you can read the first sentence. Higher oxidation state will cause more splitting. As a rule, you remember this because in exams, they will give you options and you have to arrange them from lower to higher or higher to lower. So what you need to check is ligands, weak field, strong field, और अगर सबके ligand same है तो आप oxidation state देखो. So they will keep either of the thing constant. अगर ligands constant रखा तो metal का charge देखो. Metal constant रखा है तो ligand check करो. दोनों में से एक. Third one, which metal are we taking from which transition state series? For example, you can see here, cobalt is from 3D series, rhodium 4D, and iridium is from 5D. You can see their delta octahedral value keeps on increasing. So 3D series will provide you minimum delta octahedral energy की value देखो kilojoule sense में भी. So as you go down, more and more splitting takes place. Let us do the problems of this part and then stop here for today. And tetrahedral square planar we will take up in the next lecture. These are problems from once asked in NEET and once asked in JEE. Look at the problem. Decide with the help of following delta octahedral and pairing energy values whether the complex is high spin or low spin. So आपको इस तरह का problem वो लोग देंगे सीधा. एक complex, उसकी pairing energy, उसकी octahedral energy. कैसे डिसाइड करेंगे? ये एक रूल बाय हार्ट करो. Extremely simple. Once I give the rule, delta octahedral if lesser than pairing energy, it is a weak field ligand और हाई स्पिन कॉम्प्लेक्स. बस इतना बाय हार्ट करो, आपको कोई भी प्रॉब्लम आप सॉल्व कर सकते हो. सो यू कैन सी हियर, यहाँ पे देखो डेल्टा ऑक्टाहेड्रल वैल्यू इज स्मॉलर देन पेयरिंग एनर्जी, सो दिस इज अ वीक फील्ड कॉम्प्लेक्स. अनदर एग्जांपल, delta octahedral lesser than pairing energy, weak field complex. Delta octahedral higher than pairing energy, उल्टा कैसे अभी, so it's a strong field complex. ये हो गया लोअर लेवल का इंट्रोडक्टरी प्रॉब्लम. एक लेवल हायर करते हैं and this is a JE problem which I'm showing you right now. Mn+3 has pairing energy this much and delta octahedral of 21,000 for this complex, 38,500 for this complex. Write the configuration and find out whether it is high spin or low spin. So one by one let us take up. पहला कॉम्प्लेक्स लेते हैं हम लोग MnH2O6, ये वाला. पेयरिंग एनर्जी सेम रहता है, वो मेटल पे डिपेंड रहता है, सो वो सेम है, डेल्टा ऑक्टाहेड्रल है इतना. तो टेल मी विच कॉम्प्लेक्स इज इट, वीक फील्ड और स्ट्रॉन्ग फील्ड? Weak. डेल्टा ऑक्टाहेड्रल स्मॉलर देन पेयरिंग, सो दिस इज अ वीक फील्ड. अभी अगर वीक फील्ड है तो अभी हम लोग को इसका कॉन्फ़िगरेशन फाइंड करना है. तो पहले देखो मैंगनीज का कॉन्फ़िगरेशन क्या है. Mn is 3d5,4s2. This is Mn3+ ऑक्सीडेशन स्टेट. सो यहां से 2 इलेक्ट्रॉन निकाल दिए मैंने, यहां से एक, सो 3d4. तो अभी आपको d4 का वीक फील्ड सोचना है, d4 का वीक फील्ड. सो वीक फील्ड मतलब इलेक्ट्रॉन नीचे जाएंगे 3, ऊपर वाले में 1. दिस हैज बिकम 3d T2G3 Eg1. दिस इज द कॉन्फ़िगरेशन. शांति से देखो, समझाए तो अभी मैं आगे जाता हूं. जिनको ये लिखा हुआ नहीं समझा है उनके लिए मैं यहाँ पे एक सिंपल डायग्राम ड्रॉ कर रहा हूं. ये मेरा T2G और ये अपना Eg. यहाँ पे 3 ऑर्बिटल्स है, यहाँ पे 2 है. वीक फील्ड है, डिफरेंस स्मॉल है, तो 1 2 3 4. इसी को हम लोग ने लिखा है T2G3 Eg1.
Is it understood? This is the problem level you will get in JEE and NEET. आपको कितना सारा चीज देखो एक साथ मालूम होना चाहिए. Let us now work out for MnCN6 वाला कॉम्प्लेक्स. ये these are the values. पेयरिंग एनर्जी वही है, डेल्टा ऑक्टाहेड्रल सिर्फ अलग दिया है. So if you follow the rule, delta octahedral now is larger than pairing energy. Strong field. So strong field. So configuration तो वही है 3d4 का. चारों इलेक्ट्रॉन अभी नीचे की तरफ ही रहेंगे आपके, because energy difference is large. यहां तक टॉपिक समझ में आ गया सबके? एनी डाउट? I'll complete magnetic properties quickly because they are related. Then the topic goes totally different after this. Yeah, any doubt up to this? Thank you, sir. God. चलो, मैग्नेटिक प्रॉपर्टी क्योंकि बहुत सारा सिमिलर है, ये मैं सब आपको दिखा रहा हूं, ये आपको ऑलरेडी पता है. रीड इट क्विकली, आई नीड नॉट रीड इट एट ऑल. पैरामैग्नेटिक, डायमैग्नेटिक, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स है तो पैरा, पेयर्ड है तो डाया. सबको पता है, 2 साल हो गए अभी केमिस्ट्री पढ़ते पढ़ते आपको. ये वाला भी पार्ट आपको पता है और ये टेबल भी आपने देखा है. एम आई राइट? Yes, sir. सॉलिड स्टेट में देखा, डी ब्लॉक में देखा, सब जगह देखा, फिर से आज वही है. तो अभी देखते हैं FeF6. अभी आपको इस तरह से प्रॉब्लम्स एग्जाम में आएंगे. द कॉम्प्लेक्स विच यू हैव नेवर सीन बिफोर कैन बी आस्क्ड. तो आपको क्या सोचना है? सबसे पहले Fe का पहले कॉन्फ़िगरेशन निकालो. 3d6 4s2 Fe एटम का, Fe plus 3 का 3d5. सो दिस इज d5 स्टेट. थिंक फ्लोराइड कौन सा कॉम्प्लेक्स है, कौन सा लिगेंड है, वीक फील्ड या Weak. स्ट्रॉन्ग फील्ड? वीक फील्ड. सो F- इज वीक फील्ड. तो आपको अभी d5 का वीक फील्ड सोचना है, फिलिंग. तो ये आपका T2G और Eg, 5 इलेक्ट्रॉन वीक में फिल करो. 1 2 3 4 5. So you see you have 5 unpaired electrons. मैग्नेटिक मोमेंट कैलकुलेट करो. ऐसे आपको एमसीक्यू में एक क्वेश्चन में 2 या 3 कॉम्प्लेक्सेस रहेंगे. मैंने ये आपको एक केस वर्कआउट करके दिखाया. तो वो आपको पूछेंगे डाया टू पैरा अरेंज करो, या फिर लोअर मैग्नेटिक मोमेंट टू हायर मैग्नेटिक मोमेंट अरेंज करो, ग्रेटर देन लेस देन, ये सब आएगा आपको. और एक देखो ऐसे ही FeCN6, साइनाइड इज अ स्ट्रॉन्ग फील्ड, कार्बन लिगेंड है तो स्ट्रॉन्ग फील्ड है. तो 5 इलेक्ट्रॉन अभी अपने स्ट्रॉन्ग फील्ड में जाएंगे. 1 2 3 4 5. तो खाली एक अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है तो आपका मैग्नेटिक मोमेंट बहुत कम. गेटिंग इट एवरीवन? समझ में आ रहा है करेक्टली? कि आपको टॉपिक अच्छी तरह रिवाइज करना पड़ेगा. क्वेश्चन इस पे बहुत सिंपल आते हैं, बिल्कुल टफ नहीं आते. चलो, और 2 केसेस मैंने वर्कआउट किए जो एनसीईआरटी में दिए हैं. COF6 कोबाल्ट प्लस 3, it's a 3d6, so d6 configuration. Once again fluoride is weak, so 6 1 2 3 4 5 6, 4 unpaired electrons. CONH3 6 times. Ammonia, nitrogen ligand, strong field. So T2G Eg में 6 electrons. 1 2 3 4 5 6. क्या होगा हाल इसका? डायमैग्नेटिक इन नेचर. BM, जो लोगों को कुछ पता ही नहीं होता है लाइफ में, BM का मतलब है बोर मैग्नेटॉन, यूनिट ऑफ मैग्नेटिक मोमेंट. टॉपिक यहां तक क्लियर है सब लोगों को?